Hello my dear friends, welcome you all in today's online class. My dear students of standard 8, again it is reminded you that we are learning the chapter 5. The name of the chapter is Some Natural Phenomena, and under subject science we are learning some natural phenomena. Dear friends, in this chapter we have found two kinds categories which you have to study. So dear friends, we are engaged in learning with the contents given in the books. So dear friends, this chapter comprises two kinds of the questions. First is activity based, which you have done. So dear friends, I hope all of you have done some activities given by me. In previous video you have seen some kinds of the activities which you have performed at your home. Dear friend, with the help of the illustration description of the contents, with the help of me, I hope all of you are learning all the contents very well. My dear friends, as you know, it is indicated here that we have to study some natural phenomena also. In my previous video you have seen one natural important phenomena, that is known as the lightning. So I have described all the important contents, all the important points regarding the lightning. So I hope all of you have understood the terms lightning. How does lightning takes place? What are the safety measures which you have to use? How can we overcome from lightnings? What types of the devices can be used to reduce the effects of lightning? Dear friends, today we are going to describe a very important topic here that is earthquakes. Earthquakes, these types of the problem. Dear students, if you make a comparison between the many amongst all types of the natural phenomena, then you will find that there are some natural phenomena which are very destructive and fatalist. It means they are very fatal to our life, because it destroys the economical structures and the human resources. Everything can be damaged due to the natural phenomena, and you have seen when you have opportunity to see like that types of natural phenomena which were taking place. So dear friends, these types of the natural phenomena, and earthquakes is one of them. Earthquake is also a natural phenomena which is also destructive. Okay, and you can see its destructive effects in this chapter. We will describe in detail about the earthquakes. Dear students, this is not new words. I hope you are learning since many classes that these types of not new words that have been included in this particular class also. Dear students, in previous classes you have learned about the earthquakes. Let us discuss in detail how does earthquakes takes place, how does earthquake takes place, and what are the main reason behind the taking place occurring of earthquakes. We will discuss in this video, and what are the safety measures which you will have to adopt during the occurring of the earthquakes, which types of the safety measures you can adopt, what are the devices through which the earthquakes can be measured, what are the measurement methods we will describe in this chapter. So first of all, discuss about the topic that we have selected, earthquakes. Dear friends, earthquakes, अर्थ की बात आती है. देखिए earthquakes का मतलब ही होता है, जैसे अर्थ है हमारी, ठीक है, इसमें ट्रेम्बलिंग होना, सेकिंग होना, क्वेक्स यहाँ पे बता ही रहा है कि सेकिंग ऑफ द अर्थ. सो एन अर्थक्वेक इज अ सडन सेकिंग. अर्थक्वेक हमारा क्या है? इज अ सडन सेकिंग. सडन मतलब अचानक. सडन सेकिंग, अनप्रिडिक्टेबल, दैट इज नॉट प्रिडिक्टेड. सडन सेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अब ये अर्थक्वेक क्या है जो आता है, ये वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है, काफ़ी लॉन्गर टाइम के लिए नहीं होता है. earthquakes can never be for the it will not remain for longer period of time. It is only glimpses of the short period of time. So after short period of time it will dwindle and finish. So I hope all of you have some doubts regarding that, how does earthquake occur. So we are going to discuss about the occurring of the earthquakes, taking place of the earthquake. So before going in that, let us study about the structure of earth, because earthquake is associated with the structure of earth, because trembling takes place inside the earth.
shaking of earth. We are talking about the shaking of earth. So what are the main reasons due to which the earth shakes and the trembling can be experienced on the earth? So we have to study about the earth. So first of all, dear students, this has been drawn structure of earth in SST subject. You have also learnt about the structure of earth. So this has been included here also. Dear students, you are looking here in the figure, that is the figure. In figure you are looking that there are the three kinds of the layers of the earth. That is the first is the crust, and second one is the mantle, and there is the core. Okay, but in core you are looking that core, which is the inner side of the structures. Core has been divided into two parts, sorry, that is inner core and outer core. Inner core and outer core. So crust is the outermost, okay, outermost where the buildings, the mountains and other things are standing position. Mountains can be found in the crust, okay. But dear students, in the mantle there is a mantle. Mantle is the middle region between the crust and the core. सो कोर और क्रस्ट के बीच यहाँ पे आप देख सकते हो मेंटल लाई कर रहा है. ये क्रस्ट है आपका आउटर स्फीयर, जिसमें लिथोस्फीयर भी होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये अर्थ का स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है. तो अर्थ के स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, लेट अस डिस्कस अबाउट द कोर. तो कोर में आपने देखा है कि कोर का जो ये इनर है, इनर सरफेस एरिया है, दैट इज़ द सॉलिड आयरन है. तो इसमें आपका जो आयरन है वो सॉलिड आयरन के फॉर्म में है. यहाँ पे मिनरल्स, यहाँ पे सॉलिड आयरन है, देयर इज अ सॉलिड आयरन. एंड आउटर इसका जो कोर है दैट इज़ द मोल्टन आयरन है. ये रीज़न इसलिए है क्योंकि क्या होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग डीप जाते हैं अर्थ के, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है. टेम्परेचर इंक्रीजेस एज यू मूव फ्रॉम अपर टू अपर सरफेस ऑफ द अर्थ टू द डाउनवर्ड सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के जैसे हम लोग सेंटर पे जाते हैं, कोर की ओर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है. ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पे जितने मिनरल्स हैं स्टूडेंट्स, ये मिनरल्स क्या होते हैं, मोल्ट हो जाते हैं. जैसे आपने आयरन आया होगा कि आप सोचे होगे आयरन तो सॉलिड होता है. हाउ डज आयरन जैसे आपने देखा होगा आयरन मेटल, ठीक है, तो आयरन तो सॉलिड होता है, तो फिर ये कैसे पिघल गया. दिस ड्यू टू द हाई टेम्परेचर्स इनसाइड द कोर द आर मिनरल्स गेट्स मेल्ट. तो यहाँ पे आपने देखा कि मिनरल्स क्या हो गया, मेल्ट हो गया है. लेकिन आउटर जो होता है प्रेशर, तो इसमें प्रेशर भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है. इसलिए ये जो आउटर कोर है, यहाँ पे आउटर कोर में आप देखोगे कि ये मोल्टन में हो जाता है, पिघल जाता है. ठीक है, यहाँ पे सॉलिड, क्योंकि प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर सेंटर पे आपका प्रेशर बहुत हाई होता है. तो प्रेशर होने से यहाँ पे सॉलिड आयरन फ्रेम कर लेता है. लेकिन ये थोड़ा सा प्रेशर अगर डिक्रीज़ किया तो यहाँ पे ये टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि मोल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, मेल्टिंग. ठीक है, तो आउटर कोर मेल्टिंग है और इनर कोर जो आपका ये सॉलिड आयरन है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच एरिया है ये आपको मेंटल है. ठीक है, तो मिडिल एरिया जो आपका है ये मेंटल है. तो मेंटल में आपने देखा है कि डेंस रॉक पाई जाती है. यहाँ पे बहुत सॉलिड टाइप्स की रॉक्स हैं, यहाँ पे डेंस रॉक है. और डेंस रॉक की यहाँ पे आपने देखा है कि क्रस्ट से और इसके बीच में क्या होता है कि ड्यू टू द हाई टेम्परेचर हीट क्रिएटेड्स. ड्यू टू हाई टेम्परेचर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, प्रेशर भी हाई है सेंटर पे जैसे जैसे हम लोग जा रहे होते हैं. तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से या इस पे मेंटल पे कन्वेक्शन करंट क्रिएट हो जाती है. कन्वेक्शन करंट, जैसे आपने देखा है कि जैसे हीट सॉलिड चीज़ों में, लिक्विड चीज़ों में हीट प्रोवाइड कर जाती है, तो कन्वेक्शन करंट अब फ्लो होना शुरू होता है. तो जैसे आपने देखा लैंड ब्रीज, सी ब्रीज देखा होगा कि जब हॉट एयर्स आती हैं और कूल एयर आती है, तो उसी तरह इसके अंदर क्या होता है, मेंटल पे कन्वेक्शन करंट क्रिएट हो जाती है. वो कन्वेक्शन करंट्स क्या करती है कि इसमें जो मेंटल है, मेंटल को मूव कराती है. मेंटल्स को हल्का हल्का स्लोली मेंटल मूव करने शुरू होता है. तो मेंटल मूव करेगा स्लोली. तो इसमें जो अर्थ क्रस्ट की बात करूँगा आउटर मोस्ट पे, तो जो माउंटेन वगैरह हैं, ये जो लिथोस्फीयर पे बहुत सारे माउंटेन्स, हिल्स ये जो लाई कर रहे हैं इसके क्रस्ट पे, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, स्लाइड्स करते हैं. क्योंकि क्रस्ट इज़ नॉट कंटेन्स इंडिविजुअली वन काइंड्स ऑफ द प्लेट्स, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ द प्लेट्स प्रेजेंट इन द. इसमें यहाँ लाइट रॉक्स की बात हो रही है, क्योंकि लाइट रॉक्स यहाँ पे लाई करते हैं. यहाँ पे डेंस रॉक नहीं होते, लाइट रॉक्स होते हैं. जैसे आपका टाइल्स होता है, आपने देखा टाइल्स, बाथरूम में टाइल्स लगा होता है,
तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के टाइल्स इसमें, जैसे कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक है, और ओशन है तो ओशियनिक प्लेट्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेट्स डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, क्योंकि हमारा वाटर बॉडी भी क्रस्ट पे ही लाई कर रहा है। माउंटेन कहाँ पे लाई कर रहे हैं, क्रस्ट पे लाई कर रहे हैं, अपर सरफेस पे हैं। तो ये आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ये बने होते हैं। तो जब ये मूवमेंट होता है तो प्लेट्स क्या होते हैं कि प्लेट्स में मूवमेंट होता है। प्लेट्स में मूवमेंट होगा तो प्लेट्स क्या होंगे, कोलाइड्स करेंगे, प्लेट्स कोलाइड्स करेंगे। और कोलिजन से क्या होगा, कोलिजन से हाई हीट एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो हीट एनर्जी क्या होगी, वेव एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, वेव्स पैटर्न में कन्वर्ट कर देगा, और वो वेव्स उस अर्थ के नीचे क्रस्ट के अर्थ पे ट्रेवल करना शुरू करती हैं। दैट्स वेव्स ट्रेवल इनसाइड द अर्थ, वो अर्थ के नीचे नीचे ट्रेवल करना शुरू करती हैं। तो द ट्रेवलिंग ऑफ द वेव्स क्रिएट्स शेकिंग, उसी से क्या होता है, शेकिंग क्रिएट होता है। क्योंकि हमने पहले बताया कि अर्थ क्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, ड्यू टू दिस वेव्स क्रिएट्स अ शेकिंग एंड दैट वी एक्सपीरियंस, और उसी को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। Dear students, as I have told you, there is a structures just like there is a one plate, this way is the one plate, and there is another plate. When these plates collides to each other, and this is the collision site where the two plates during the movement in opposite directions meets to at points and collides. Collision takes place there. Collision से क्या होता है कि heat create होती है, huge amount of the heat creates, और वो heat कन्वर्ट करती है, क्योंकि हीट एनर्जी है, वो वेव पैटर्न में कन्वर्ट करती है, जैसे वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। वेव्स समझ रहे हो ना, जैसे तरंग आप पानी में आप डाल दीजिए, पानी में कुछ वाटर में आप वाटर बॉडी पे पॉन्ड्स हो, स्टैग्नेंट वाटर हो, उसमें आप छोटा सा पत्थर डाल दीजिए, तो ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि कुछ ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर्स आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो वो एक तरह से वेव पैटर्न का इंडिकेशन है स्टूडेंट्स, वेव्स ऐसे क्रिएट हो रही हैं। तो अर्थ वेव ही वेव्स ऐसे ही क्रिएट होती है, अर्थ में भी वेव्स ऐसे ही चलती हैं, जिसे हम लोग सीस्मिक वेव्स कहते हैं। सीस्मिक वेव्स, क्योंकि सीस्मिक जोन्स में हमारा जितना एरिया है, सीस्मिक वेव्स कहते हैं उसको हम लोग। तो वो वेव्स यहाँ पे ट्रेवल कर रही हैं। आप देखिए, अगर कुछ ऐसा है, ये माउंटेन एक ये ऐसे मान लो खड़ा हुआ है, एक ये ऐसे है, ये दोनों क्या हुए, हेड ऑन कोलिजन कर लिए। तो कोलिजन से क्या हुआ, क्योंकि हीट क्रिएट होगा, और वो हीट क्या क्रिएट करेगी, आपको पता है कि वेव पैटर्न क्रिएट करेगी। वेव पैटर्न क्रिएट करेगी तो अर्थ के क्रस्ट पे, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, वेव्स क्रिएट्स एंड दैट वेव्स प्रोपेगेट्स इनसाइड द, स्टार्ट टू प्रोपेगेट इनसाइड द स्ट्रक्चर क्रस्ट। वो आपके अर्थ के अंदर अंदर वो प्रोपेगेट वेव शुरू हो जाएंगी। तो प्रोपेगेशन ऑफ वर्ड्स काजेस ट्रेम्बलिंग और शेकिंग। देयर इज ओनली वन इंटेंशन बिहाइंड एक्सप्लेनिंग द अर्थक्वेक। जैसे आपको टेक्टोनिक प्लेट्स बताया गया है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा अर्थक्वेक का जो मेन रीजन, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, वो स्लाइड्स करते हैं, मूव करते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स एवरी ईयर 0.6 इंच क्या होते हैं वो पर ईयर मूव कर लेते हैं। तो धीरे धीरे मूवमेंट उसमें ज़्यादा होता रहता है, तो वो कोलिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि कोलिजन से ही हो रहा है, क्योंकि वो कोलाइड्स कर रही हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन करेंट्स जो यहाँ पे क्रिएट होती है, ये कन्वेक्शन करेंट्स मेंटल को धीरे धीरे स्लोली मूव कराती है। तो मेंटल से यहाँ पे देखिए अटैच, यहाँ पे अगर कोई भी माउंटेन है तो वो भी मूव करेगा, क्योंकि देयर इज अ सेपरेट पार्ट एंड दिस इज द वन, सो मूवमेंट विल बी कीप ऑन। डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू that earthquakes is always destructive in nature, because it causes a lot of destruction in the field of economical structures and physical structures, because living and non-living both can be damaged by the earthquake. It means if a tall building falls, then building will be damaged, and the people living in that building will be submerged, buried inside the debris after the falling of the buildings, tall building. So we have seen that earthquakes is always destructive in nature. Earthquake always destructive in nature. Yes students, so there is a other questions which can be arised in your mind, and you can store your mind, you can
generate questions regarding the discussions which is going on. Dear friends, you can think that can we predict the earthquake? In previous class you have seen that there are some natural phenomena which can be predicted. Predicted means the right times of occurring can be told, can be can be provided information that when these types of natural phenomena will take place. Just like tsunami, storm, you have often seen in the monsoon, in the forecasting, broadcasting of weather forecast, that only weather forecast which tells that when a storm will come and when it will rain. So all these types of information can be provided by the weather forecasting organization. So these types of informations you get, but there is no any organization in the world which can specify, which can predict that when the earthquake will occur, because this is the unknown about all the scientists. All scientists are engaged in deriving the techniques through which they can foretell that when the earthquakes will occur. So we are unknown about that so far. Dear friends, there is a major earthquake which have taken place in India in 26 January 2001 at भुज ऑफ गुजरात. गुजरात में आपने देखा है कि गुजरात के भुज और कच्छ एरिया में 2001 में 26 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग बहुत ह्यूज अर्थक्वेक आया था, जिससे बहुत सारे बच्चे स्कूल के, क्योंकि 26 जनवरी इज़ द, आपको पता है कि नेशनल फेस्टिवल है 26 जनवरी, दैट इज़ रिपब्लिक डे. So all of the students were engaged in celebrating the national festival, that is 26 January as a Republic Day. They didn't know that earthquakes will come, and they were moving here to and fro randomly, and suddenly the earthquakes arises and seismic waves traverse there, and the building gets collapsed, and the thousands of the people were died at the same time. So dear friends, you have seen that this is a very destructive in nature, and we can use to reduce the symptoms. We can use some methods to which we can reduce the earthquake, but earthquakes cannot be reduced. But if you adopt some safety measures through which we can reduce the effects of damaging, we can overcome from being damaged if you follow the some instruction which will be tell at the end of the video. Dear students, there are some zones in India, all over the world, where is the maximum possibility of taking earthquakes. So first of all, be assured where you are living that this is the zones which is free from the earthquake or not. So you must be familiar with that, whether you are living on the place, on the area where there is a possibility, maximum prone conditions on which the earthquakes can occur. No, in all over the India, earthquakes can never take place, because there are some zones in India just like Kashmir, Bhuj, Kashmir, अपना कच्छ. In India में the area most threatened earthquakes, Kashmir, western central Himalayas, the whole of northeast run of Kutch, Rajasthan and Indo-Gangetic plain. These are the seismic zones. Seismic zone और fault zone जहाँ पे earthquake आने की maximum possibility होती है. तो इंडिया में ज़्यादातर आपने देखा कि कश्मीर, दैट इज़ द हिली एरिया, माउंटेन एरिया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे आते हैं. राजस्थान में भी है, और हिमालय में आपने देखा कि सेंट्रल हिमालय, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अर्थक्वेक आने की. तो वो किस एरिया में होंगे? वो होंगे हमारे सीस्मिक जोन्स या फॉल्ट जोन में होंगे. उसको हम लोग दो कहते हैं, एक सीस्मिक जोन, एक फॉल्ट जोन. फॉल्ट जोन में जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो अर्थक्वेक की आने की. डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या कर देंगे कि अर्थक्वेक्स जब आता है तो दैट इज़ अ अनप्रिडिक्टेबल नेचुरल फिनोमेना विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. ओके, अब इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स and we can measure the intensity of the waves which travels inside the earth. अब
उसकी हम लोग इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता नाप सकते हैं कि कितना तेज था अर्थक्वेक, कितना डिस्ट्रक्टिव है, इसके बेसिस पे हम लोग नाप लेते हैं। तो सिस्मोग्राफ्स होता है, फर्स्ट इज सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है? सिस्मोग्राफ इज इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स इन टर्म्स ऑफ द शॉक वेव्स इट प्रोड्यूसेस। जो शॉक वेव प्रोड्यूस हुई हैं उसकी क्या करता है? इंटेंसिटी मेजर करता है, दैट इज द सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का यूज करके हम लोग इंटेंसिटी मेजर कर लेंगे। तो अब अर्थक्वेक्स जहाँ से क्रिएट होता है अर्थ सेंटर से, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो द प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक इज जनरेटेड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का फोकस कहाँ है? जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। तो जैसे मान लो अर्थ का हमने स्ट्रक्चर बनाया, तो अर्थ का स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो, तो जहाँ से ये शुरू होगा तो यहाँ इसको हम लोग फोकस बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज फोकस ऑफ अर्थक्वेक। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है आपका, डिवाइस है, दैट इज रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से क्या मेजर करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी नापते हैं कि कितना वो हाईली इंटेंस है अर्थक्वेक्स। Yes, and let us discuss about the some safety measures through which you can adopt to overcome the damages of earthquakes. So there are some safety measures which you can adopt. Yes, friends, I have told you about the seismic zones, fault zones, where there is a maximum possibility of occurring of earthquakes. अर्थक्वेक्स जहाँ पे आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है उसको हम लोग सीस्मिक जोन्स में कहते हैं। तो अगर सीस्मिक जोन्स में और फॉल्ट जोन में अगर हम लोग घर बनवा रहे हैं तो वहाँ पे हमको बिना एक वेल इंजीनियर आर्किटेक्चर के कंसल्ट के हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना चाहिए। पहले हमको इंजीनियर से क्या करना चाहिए? कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अब आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। बहुत सारी इंजीनियरिंग, रुड़की इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस ने कुछ एंटी अर्थक्वेक्स बिल्डिंग्स फॉर्मेशन करने में सक्सेस हुई हैं। तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि इंजीनियर से, आर्किटेक्चरल से कंसल्ट करके बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे मैक्सिमम सिस्मिक जोन्स में, फॉल्ट्स में आने की बात हो। या तो ज़्यादातर हम लोग ऐसे कुछ मटेरियल यूज़ करें दैट इज़ लाइटर, जस्ट लाइक वुड, अदर थिंग्स, इंस्टीड ऑफ द हैवी कंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जस्ट लाइक अ iron steel rod, okay, bricks. We can use the mud instead of the bricks. You can create a muddy house and a lighted house, that will be safety. हाई सिस्मिक एरियाज में मड टिम्बर्स वुड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही आसान होता है। अब हम लोग कप बोर्ड्स और फ्रेम्स, फोटोज़ एक्सेट्रा, इसको हम लोग को क्या करना है कि बहुत एकदम टाइटली फिट करना है वाल से, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेम अगर हो तो ये गिर ना जाएं। ये अब तो दो पॉसिबिलिटी आती है कि हम लोग अगर इनडोर हैं या आउटडोर हैं तो क्या सेफ्टी मेजर यूज करेंगे। अगर इनडोर हैं या आउटडोर हैं, हाउस के बाहर हैं, हाउस के अंदर हैं, हाउस के अंदर हैं तो इनडोर हैं, बाहर हैं तो आउटडोर हैं, तो उसी समय अगर अर्थक्वेक्स की पॉसिबिलिटी हो जाती है तो तुरंत ऑन स्पॉट क्या सेफ्टी मेजर्स हम लोग यूज़ करेंगे। उस समय सेफ्टी मेजर्स आप क्या यूज करोगे? विच टाइप सेफ्टी मेजर यू विल अडॉप्ट? सेफ्टी मेजर्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी मेजर्स आप क्या यूज करोगे? इफ़ यू आर एट होम, earthquakes occur, then we should take shelter under a sturdy table. एक स्टडी टेबल्स के अंदर ही छुप जाना चाहिए, क्योंकि स्टडी टेबल तो दैट इज़ द हार्ड एंड टफ, तो टेबल के अंदर छिपेंगे तो दैट विल बी गुड। आर किचन काउंटर एंड स्टे टिल देयर until the effects of earthquakes is not finished. तब तक छुपे रहना जब तक इसका इफेक्ट्स वेव्स का कम नहीं हो जाता है। नेक्स्ट वन इज वी शुड स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स। टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट लाइक स्टील, अलमीरा, बिल्डिंग्स, कपबोर्ड्स, इससे हम लोग क्या करना है? बाहर होना है। कबर्ड्स के या स्टील आइस चीज़ों से बाहर हो जाना है। अगर आउटडोर है तो क्या करेंगे? तो आउटडोर वी शुड स्टे एट ए क्लियर स्पॉट वेयर द बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर्स लाइन। अगर आउटडोर भी हैं तो वायर के थ्रू, जहाँ से वायर पास हो रही हो, हाई टेंशन वायर है तो उसके नीचे नहीं खड़ा होना है। ट्रीज़ है उसके नीचे नहीं स्टैंड करना है। अदर टॉल बिल्डिंग्स है उसके नीचे नहीं खड़े होना है। इफ़ यू आर आउटडोर, इफ़ यू आर इन कार, अगर कार पे हो, इफ़ यू आर ड्राइविंग ए कार, देन रिड्यूस द स्पीड ऑफ द कार
and move the car in slow speed. You should try to reduce the speed immediately, and you should not pass the car through the high tension of wire which is passing across the car. तो आप वहाँ पे नहीं करना है. If you are in car, then you should do the all these types of the safety measures. So if you adopt these types of safety measures, we can overcome from the effects of the earthquakes, but totally we cannot escape from the clutches of the earthquakes. If we do any kinds of the faults, if you are avoiding any kinds of the safety measures, then we can be damaged due to the effects of the earthquake. That I have told you that it is always in pattern. Dear friends, I hope all of you have understood the concept of earthquakes. So as we have discussed the earthquake topic, so with the discussion of this topic, we have completed the chapter also. Your chapter activity based sorry. Now this chapter is over. I hope students, all of you have understood every terms regarding the earthquakes clearly. And now this chapter is over. It is gladly informed to you that we have finished the chapter completely, because this chapter is was activity based, and there are some natural phenomena which were associated with the chapter that we have discussed completely. Thank you students for watching today's video, and the homework which will be given at the end of the video, you have to take the screenshot of the homework and try to do it very well. I hope all of you do so. Thank you students for watching today's video.